Hello friends, welcome in RKG Biology tutorial. In this lecture, we are going to discuss the ultrastructure, internal structure of cilia and flagella. See, the chemical composition and internal structure, that is ultrastructure of cilia and flagella, similar, but they vary in their function, in their position, in their number. Clear? See, cilia and flagella both arise from basal body or basal granules like this. Suppose this is the plasma membrane, and below the plasma membrane blepharoplast or kinetosome or basal granule or basal body present, and this basal body give rise cilia or flagella like this. Clear? And the basal part of the cilia or flagella covered by the sheath, covered by the protoplasmic sheath. Clear? Only the basal part of cilia and flagella covered by the protoplasmic sheath. Clear? See here, the internal structure of cilia and flagella mainly have two parts. पहला पार्ट है प्रोटोप्लाज्मिक शीथ और दूसरा पार्ट है एक्सोनीम और एक्सियल फिलामेंट. This protoplasmic sheath covered the cilia and flagella externally. It is the outermost covering, and it is double layered, and it is continuous with the cell membrane or plasma membrane. Clear? And second one is the exoneum or axial filament. This exoneum or axial filament have two types of microtubule. One is the peripheral microtubule and other is the central microtubule. Clear? So peripheral microtubule means microtubule arranged on the periphery of the cilia and flagella. जो cilia and flagella के periphery रीजन में, बाउंड्री रीजन में लोकेटेड होते हैं, उनको हम पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं. एंड दे आर 9 इन नंबर. कितने होते हैं? 9 होते हैं. 9 इन नंबर. सो देयर आर 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स. सी दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These are the peripheral microtubules and they are present in the form of doublet. Doublet का मतलब क्या? सब यूनिट ए एंड सब यूनिट बी, या सब ट्यूब्यूल ए सब ट्यूब्यूल बी. क्लियर? सो दैट इज 9 sets of doublet, 9 peripheral microtubule in the form of doublet. See here, these are the two subtubule A and subtubule B. This subtubule A made up of 13 protofilament and this subtubule B made up of 10 protofilament. Clear? Subtubule A 13 protofilament का बना होता है और subtubule B 10 protofilament का बना होता है. Clear? These are the arrangement of the protofilament. Clear? And these protofilaments made up of alpha and beta tubulin protein. ये जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं. क्लियर? एंड सब ट्यूब्यूल ए स्लाइटली इनर होता है, सब ट्यूब्यूल बी स्लाइटली आउटर होता है. क्लियर? इन पोजीशन सब ट्यूब्यूल ए सब ट्यूब्यूल बी से अटैच होता है. क्लियर? सब ट्यूब्यूल ए पे दो तरह के आर्म्स होते हैं. दैट दीज आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ आर्म्स. यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 1 2 1 2 1 2. These are the arms, two different types of arms. जो आउटर आर्म है वो हुक लाइक होता है. क्लियर? बाहर की तरफ निकला होता है, हुक लाइक होता है. और जो इनर आर्म है वो बेंड रहता है, अंदर की तरफ बेंड रहता है. क्लियर? और ये जो आर्म्स हैं ये सभी ये डाइनिन प्रोटीन के बने होते हैं. क्लियर? सो द आउटर एंड इनर आर्म्स ऑफ सबट्यूब्यूल ए मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन. And see, these are the central microtubules.
and central microtubules that is 2 in number, C1 और C2. क्लियर? तो इस तरह से जो माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट है सीलिया और फ्लैजला में वो 9+2 है. 9 क्या है? पेरिफेरल है जो बाउंड्री की तरफ होता है, और 2 क्या है? सेंटर में है. सो द माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट इन सीलिया एंड फ्लैजला in their internal structure, in their ultrastructure is 9+2. क्लियर? इसीलिए जो माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट है सीलिया एंड फ्लैजला में वो 9+2 का है. 9 पेरिफेरल और 2 सेंट्रल. क्लियर? नेक्स्ट वी सी अबाउट द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. दे आर 2 इन नंबर, C1 एंड C2. C1 को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो C1 पे इस तरह से प्रोजेक्शंस निकला होता है, तो वो उसी को हम बोलते हैं C1 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, और जिसपे प्रोजेक्शन नहीं है उसको हम C2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं. क्लियर? C1 और C2 दोनों जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है वो 13 प्रोटोफिलामेंट के बने होते हैं. C1 भी 13 प्रोटोफिलामेंट का बना होता है और C2 भी 13 प्रोटोफिलामेंट का बना होता है. क्लियर? और ये जो प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स में वो डायनीन प्रोटीन का बना होता है. क्लियर? डायनीन प्रोटीन का बना हुआ प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट होता है इन सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. क्लियर? और जो डायनीन प्रोटीन है वो एटीपीएच की तरह काम करता है, मतलब एटीपी प्रोड्यूसिंग एंजाइम की तरह काम करता है. क्लियर? और यहां पे देख लेते हैं जो C1 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है उसका डायमीटर 250 एंगस्ट्रॉम होता है, और C2 का भी डायमीटर 250 एंगस्ट्रॉम होता है. क्लियर? और ये दोनों C1 और C2 जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये आपस में बाइंड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं बाय द डबल क्रॉस ब्रिज. ये डबल क्रॉस ब्रिज है. डबल क्रॉस ब्रिज के थ्रू C1 और C2 आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. क्लियर? यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो C1 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है वहां पे प्रोजेक्शंस है, और C2 जो है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे प्रोजेक्शंस नहीं है. सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट मीन्स C1 and C2 both are made up of 13 protofilament, and protofilament made up of dynein protein which act as the ATPase enzyme, energy producing enzyme है. This enzyme hydrolyze the ATP and generate the energy. और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो C1 और C2 है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स वो एक कॉमन सीथ से कवर्ड है, कॉमन लेयर से कवर्ड है, तो इसी को बोलते हैं हम सेंट्रल सीथ. क्लियर? सो सेंट्रल सीथ कवर्ड बोथ C1 and C2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. क्लियर? नेक्स्ट वी सी these structures. AB लिंकर. AB लिंकर कहां पे प्रेजेंट होता है? सी ये जो ये A सब टिब्यूल है और ये B सब टिब्यूल है. A सब टिब्यूल का जो इनर बेंड होता है ये अटैच होता है सब टिब्यूल B से, इस तरह से. दैट मीन दिस इनर arm of the subtibule A attached to the subtibule B, इस तरह से. क्लियर? तो इस तरह से ये अटैच रहेगा अपने नियर सबटिब्यूल B से. इनर आर्म ऑफ द सबटिब्यूल A अटैच टू द सबटिब्यूल B, इस तरह से इन क्लॉकवाइज मैनर में इस तरह से ये B से अरेंज रहेगा इस तरह से. एंड दिस इज द AB लिंकर. इसी को क्या बोलेंगे हम? AB लिंकर बोलेंगे. दिस इज द AB लिंकर. क्लियर? सो द इनर आर्म ऑफ सबटिब्यूल A अटैच टू द सबटिब्यूल B बाई AB लिंकर. तो इसको क्या बोलने वाले हम? AB लिंकर. AB लिंकर.
and this AB linker made up of नेक्सिन प्रोटीन. किसका बना होता है? नेक्सिन प्रोटीन का बना होता है AB लिंकर. क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब टिब्यूल ए. जो सब टिब्यूल ए है ये वाला, फ्रॉम ईच सब टिब्यूल ए रेडियल स्पोक्स अराइज. सी दिस इज द रेडियल स्पोक. सबसे पहले इसको हम लोग कवर कर लेते हैं बाय द सेंट्रल सीथ. सी दिस इज द सेंट्रल सीथ which covered the central microtubule C1 and C2. Clear? So this is what? This is the central sheath. Clear? Which covered the C1 and C2 central microtubule. और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? इस तरह से डबल क्रॉस ब्रिज प्रेजेंट है. इस तरह से these are the double cross bridge. This is the double cross bridge. Clear? अब देखते हैं हम लोग कि यहां से रेडियल स्पोक्स निकलते हैं. सब टिब्यूल ए से क्या निकलता है? रेडियल स्पोक्स निकलते हैं इस तरह से. एंड द end of the radial spoke is somewhat dense. इस तरह से dense होता है. So from each subtubule radial spokes arise like this. See, this is the radial spoke arise from each subtubule A like this. इस तरह से. Clear? इस तरह से क्लियर. एंड दे डू नॉट टच द सेंट्रल सीथ. जो हेड है रेडियल स्पोक का उसको बोलते हैं हम स्पोक हेड. दिस इज द स्पोक हेड एंड दिस स्पोक हेड डू नॉट टच द सेंट्रल सीथ. क्लियर. तो इस तरह से 9 रेडियल स्पोक्स अराइज होते हैं फ्रॉम द सब टिब्यूल ए से. क्लियर. और ये जो रेडियल स्पोक्स है, दीज आर द रेडियल स्पोक्स. These are radial spokes. And radial spoke 9 radial spokes, they are made up of dense material. डेंस मटेरियल का मतलब ये भी एक तरह का प्रोटीन है जिसको हम यहाँ पे डेंस मटेरियल बोलते हैं. सो फ्रॉम ईच सबटिब्यूल ए रेडियल spokes arise and these radial spokes made up of dense material, and the terminal end of radial spoke somewhat thick, and that is known as the spoke head. And the spoke head do not touch the central sheath. Central sheath को रेडियल स्पोक टच नहीं करता है. क्लियर. अब देख लेते हैं हम कि ये जो माइक्रो टिब्यूल्स है, दैट इज द पेरिफेरल माइक्रोटिब्यूल, सबटिब्यूल ए एंड सबटिब्यूल बी, वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं. ठीक है. सपोज ये एक तरह का सीलिया या फ्लैजला है और इस तरह से ये, तो इस तरह से ये क्या है? ये सबटिब्यूल ए, ये बी है, ये बी ए बी ए बी. तो इस तरह से ए और बी जो सब यूनिट्स हैं या सब टिब्यूल्स हैं, they make the boundary, they make the wall of the microtubule, peripheral microtubule. Means subtubule A and subtubule B make the wall of the peripheral microtubule. Peripheral microtubules के wall को बनाता है subtubule A and subtubule B. In this, arrange in this manner. इस तरह से ये arrange होता है. Clear? Subtubule A, subtubule B. So subtubule A and subtubule B arrange in this way that they make the wall of the 9 peripheral microtubule. Clear? See here,
and these structure covered by the outermost covering, that is the sheath. इस तरह से see, this is the sheath and this sheath covered these peripheral 9 peripheral microtubules like this. इस तरह से ये covered रहता है. This is the sheath and this sheath covered the peripheral 9 peripheral microtubules. और भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये जो सबटिब्यूल ए है ये कनेक्टेड होता है इस शीथ से इस तरह से. दिस सबटिब्यूल ए कनेक्टेड बाय द शीथ. शीथ से ये कनेक्ट होता है इस तरह से कनेक्ट होता है शीथ से. क्लियर? सॉरी, दिस ए कनेक्ट टू द शीथ. शीथ से ये कनेक्ट होता है. क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ cilia and flagella. Clear? And the arrangement of the peripheral and central microtubules. See, this structure is the sheath. This sheath. Clear? Once again, I recap. हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and they are present on the periphery. ठीक है? That's why 9 peripheral microtubule in the form of doublet. Doublet का मतलब क्या? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं A and B, A and B, A and B, doublet के फॉर्म में. That means 9 sets of doublet. फिर क्या प्रेजेंट है? सेंटर में 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है. इसीलिए जो माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट है सीलिया एंड फ्लैजेला में वो कैसा है? 9+2 टाइप का है. क्लियर? जो ए सबट्यूब्यूल है इसके पास 2 आर्म है, आउटर आर्म एंड इनर आर्म. आउटर आर्म को हम हुक बोलते हैं. हुक लाइक होता है इस तरह से देख सकते हैं. दीज आर द हुक लाइक स्ट्रक्चर. और जो इनर आर्म है वो बेंड रहता है अंदर की तरफ. आउटर एंड इनर आर्म डाइनिन प्रोटीन के बने होते हैं. क्लियर? ए सबट्यूब्यूल थोड़ा से अंदर की तरफ और बी सबट्यूब्यूल थोड़ा से बाहर की तरफ होता है. ए सबट्यूब्यूल 13 प्रोटोफिलामेंट का और बी सबट्यूब्यूल 10 प्रोटोफिलामेंट का बना होता है. और जो प्रोटोफिलामेंट है वो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है. और सेंटर में 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ईच सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल दैट इज C1 एंड C2 मेड अप ऑफ 13 एंड 13 प्रोटोफिलामेंट. और ये जो प्रोटोफिलामेंट है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स में ये डाइनिन प्रोटीन के बने होते हैं जो ATPase एंजाइम की तरह वर्क करते हैं. दैट मीन एटीपी का हाइड्रोलिसिस करते हैं, रिजल्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. AB लिंकर होता है, मतलब जो इनर आर्म है ए सब यूनिट का वो नियर के बी सब यूनिट से अटैच होता है बाय द AB लिंकर के थ्रू. ठीक है यहाँ पे. और AB लिंकर किसका बना है? नेक्सिन प्रोटीन का बना हुआ है. क्लियर? और क्या है कि सब यूनिट ए से रेडियल स्पोक्स निकल रहे हैं. तो इस तरह से 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं और ये रेडियल स्पोक्स डेंस मटेरियल के बने होते हैं. दैट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. और जो रेडियल स्पोक्स का टर्मिनल एंड है वो समवॉट डेंस होता है जिसको हम स्पोक हेड बोलते हैं. स्पोक हेड जो है वो सेंट्रल शीथ को टच नहीं करता है. क्लियर? और ये पूरा स्ट्रक्चर एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको हम शीथ बोलते हैं. क्लियर? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब सीलिया एंड फ्लैजेला को मूव करना होता है, वाइब्रेट करना होता है, तो ये डाइनिन प्रोटीन जो ATPase की तरह वर्क कर रहा है ATP का हाइड्रोलिसिस करेगा, रिजल्टेंट एनर्जी रिलीज होगा और उसी एनर्जी का यूज करके ये जो स्पोक हेड है ये जाकर के सेंट्रल शीथ से अटैच हो जाएगा. और जब सेंट्रल शीथ मूव करेगा तो ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये भी साथ में मूव करेंगे. तो इस तरह से सीलिया और फ्लैजेला का मूवमेंट होता है. क्लियर? सो द मेन रोल प्ले
in the movement and locomotion of cilia and flagella, that is the central microtubule, which is made up of dynein protein and which act as the ATPase, that means ATP hydrolyzing enzyme. और यही ATPase ATP का हाइड्रोलिसिस करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा, रिजल्टेंट स्पोक हेड सेंट्रल से अटैच हो जाएगा और जब ये सेंट्रल C1 C2 रोटेट करेंगे तो ये पूरा पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल भी रोटेट करेगा, दैट मीन फाइनली सीलिया एंड फ्लैजेला रोटेट करेगा, मूव करेगा. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है सीलिया का, सीलिया इज ऑफ टू टाइप्स, काइनोसीलिया एंड स्टीरियोसीलिया. तो जो काइनोसीलिया था वो मोटाइल होता है, मोटाइल, और इस काइनोसीलिया के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है वो 9+2 है, मतलब 9 पेरिफेरल और 2 सेंट्रल, इस तरह से. क्लियर? क्योंकि ये कैसा है, मोटाइल सीलिया है. और जो स्टीरियोसीलिया होता है ये नॉन मोटाइल होता है बट इट इज सेंसरी इन नेचर, सेंसरी होता है ये. तो इसके अंदर जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये अब्सेंट होते हैं. क्लियर? क्योंकि ये नॉन मोटाइल है. सो स्टीरियोसीलिया दैट इज द नॉन मोटाइल, और इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है वो 9+0 होता है. क्लियर? सो वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक ड्यूरिंग आंसरिंग द क्वेश्चन कि अगर काइनोसीलिया में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट पूछ रहा है तो 9+2 लगाएंगे क्योंकि ये मोटाइल है, इसमें पेरिफेरल और सेंट्रल दोनों माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं. और अगर स्टीरियोसीलिया में माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट पूछ रहा है तो 9+0 लगाएंगे. क्यों? क्योंकि ये नॉन मोटाइल होता है, सेंसरी होता है, तो इसमें सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स अब्सेंट होते हैं, दैट इज 9+0. और अगर सिर्फ पूछता है कि व्हाट इज द माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट इन सीलिया एंड फ्लैजेला, so our answer will be 9+2. Clear? So this is about the internal structure of cilia and flagella. Cilia and flagella mainly made up of tubulin protein. Clear? Tubulin protein का बना होता है और इसमें हम लोग देख सकते हैं दूसरे भी प्रोटीन्स है, जैसे कि नेक्सिन प्रोटीन है, नेक्सिन प्रोटीन है, ठीक है, और डाइनिन प्रोटीन है. क्लियर? Okay, so I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.